Hello students, in the previous lecture we discussed about the microprocessor instruction set and programming languages, different programming languages. We studied about the basics of these topics, that is microprocessor, 8085 instruction set and programming languages. And then we studied that what are the types of instructions according to the length, it is 1 byte instruction, 2 byte instruction, 3 byte instruction. Then we discussed what are the type of instructions according to the addressing modes, means how the data can be accessed into the instruction. And there are 5 types of addressing modes that are named as immediate addressing mode, direct addressing mode, indirect addressing mode, register addressing mode, and implicit or implied addressing mode. Then we discussed about the flowchart and its symbols. Now we are going to discuss about the 8085 instruction set, and in this topic we will discuss about the 8085 instructions and their classification based on their functionality. So the 8085 microprocessor instruction set has 74 operation codes that result in 246 instructions. And the 8085 instructions can be classified into the following 5 functional categories: data transfer operations, arithmetic operations, logical operations, branching operations, and machine control operations. In the previous lecture, we discussed some data transfer instructions. So just we are going to recall what are the data transfer operations. The data transfer operations perform following operations. डेटा ट्रांसफ़र ऑपरेशंस में कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल, डेटा का ट्रांसफ़र कहाँ से कहाँ हो सकता है. डेटा, सपोज दिस इज माइक्रो प्रोसेसर एंड memory and input output device. Okay. So in how many ways the data can be transferred? Data can be transferred from memory to microprocessor, or from microprocessor to memory, or data can be loaded in the, we know that there are 6 general purpose registers in the microprocessor 8085. Data can be transferred or loaded in that register, one of them, and data can also be transferred in a register pair, that is 16 bit. तो डेटा दो तरह से लोड हो सकती है. एक तो 8 बिट रजिस्टर में लोड हो सकती है, जो कि जनरल पर्पस रजिस्टर्स में से किसी भी एक रजिस्टर में, और डेटा जो है वो किसी रजिस्टर पेयर में भी लोड हो सकती है, जो कि 16 बिट का होगा. तो इस तरह से डेटा ट्रांसफर ऑपरेशंस परफॉर्म फॉलोइंग ऑपरेशंस: लोड एन 8 बिट नंबर इन अ रजिस्टर. यहाँ कौन सा रजिस्टर की बात हो रही है? माइक्रो प्रोसेसर में जो जनरल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं BCD ऐसे, उनमें से किसी भी एक रजिस्टर की बात हो रही है, दैट इज लोड एन 8 बिट नंबर इन अ रजिस्टर, और लोड 16 बिट नंबर इन अ रजिस्टर पेयर. We know that general purpose registers can be used to store either 8 bit, or they can be used to store 16 bit when they will be used in the register pair. So the third operation is the data can be copied from a register to register. This is also possible. ये भी पॉसिबल है कि माइक्रो प्रोसेसर में जो जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं BCDEHL, उनमें से किसी एक रजिस्टर में से डेटा को दूसरे रजिस्टर में कॉपी किया जा सके, और कॉपी बिटवीन रजिस्टर एंड मेमोरी. माइक्रो प्रोसेसर के रजिस्टर से मेमोरी में भी डेटा का ट्रांसफ़र हो सकता है. ओके. तो ये जो ट्रांसफ़र या तो मेमोरी टू माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर टू मेमोरी, बोथ वेज में पॉसिबल है. देन कॉपी बिटवीन इनपुट आउटपुट एंड एक्यूमुलेटर. माइक्रो प्रोसेसर के अंदर जो एक्यूमुलेटर है, वहाँ से डेटा को आउटपुट
डिवाइस पर सेंड किया जा सकता है या इनपुट डिवाइस से एक्यूमुलेटर में रीड भी किया जा सकता है। तो ये ऑपरेशन भी पॉसिबल है। देन कॉपी बिटवीन रजिस्टर्स एंड स्टैक मेमोरी, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट डेटा ट्रांसफ़र ऑपरेशंस हो सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीक़ों से। तो इसी के बेसिस पर 8085 इंस्ट्रक्शन सेट में डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शंस जो हैं, वहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस यहाँ मेंशन है, जिनको हम एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, डेटा ट्रांसफ़र ऑपरेशंस में डेटा जहाँ से कॉपी होता है उसको सोर्स बोलते हैं, और जहाँ पे कॉपी होता है उसको डेस्टिनेशन बोलते हैं। यहाँ पर एक और कन्फ्यूजन होता है कि यहाँ पर ट्रांसफ़र लिखा हुआ है, इसका मतलब ट्रांसफ़र का मतलब ये नहीं है कि जो सोर्स है वहाँ से डेटा रिमूव हो जाएगा, ऐसा नहीं है। द डेटा विल बी रिटेन इन सोर्स ऑल्सो एंड इट विल बी कॉपीड to the destination. This is the meaning of data transfer operations. So data transfer operations are also called as data copy operations. And one more thing is that in 8085 data transfer instructions do not affect the flags. हम जानते हैं कि फ्लैग रजिस्टर होता है, जो अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट होता है, उसमें एक फ्लैग रजिस्टर होता है जिसमें 5 फ्लैग्स होता है, साइन फ्लैग, जीरो फ्लैग, ऑक्सिलरी sign, zero, auxiliary carry and parity flag. So we know that if we perform arithmetic or logical instructions, then the flag register will be modified according to the result. But in the data transfer instructions, the flag register is not modified. Okay? This is the meaning of second point. That is, in 8085 data transfer instructions do not affect the flags. Here it will be 8085 data transfer instructions do not affect the flags. Then let's discuss some instructions related to data transfer operations. First instruction is MVI R, 8 bit. What is the meaning of MVI R, 8 bit? First of all, इसका हम मीनिंग समझ लेते हैं। इसका मतलब है मूव इमीडिएट दिस 8 bit डेटा इनटू द रजिस्टर। आर का मतलब है रजिस्टर। ओके, कौन सा रजिस्टर? द रजिस्टर कैन बी बी, सी, डी, ई, एच, एल और एक्यूमुलेटर। तो द मीनिंग ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन MVI R, 8 bit is load 8 bit data in the register. For example, MVI B, 4FH, ये एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इसमें हम देख सकते हैं कि इस एग्जाम्पल में डेटा कौन सी है? इसमें डेटा जो है वो 4FH है। 4F है, उसको कहाँ पर लोड करना है? रजिस्टर B में। तो द मीनिंग ऑफ दिस एग्जाम्पल इज लोड 4FH इनटू रजिस्टर B। ओके, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि इंस्ट्रक्शन कितने बाइट का है। तो दिस इंस्ट्रक्शन MVI R, 8 bit is of 2 bytes. ये इंस्ट्रक्शन 2 बाइट्स का है। इट मीन्स दैट इट विल टेक 2 बाइट्स इन मेमोरी। और फर्स्ट बाइट पे इसका ऑप कोड होगा, ऑपरेशन कोड, एंड सेकेंड बाइट इसका क्या होगा? ये डेटा होगा, दैट इज 4FS. So this instruction will take 2 bytes in memory. So the length of this instruction is 2 bytes. Then which addressing mode? तो एड्रेसिंग मोड को पहचानने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड आइडेंटिफाई दैट in what way the data is being accessed. डेटा को इंस्ट्रक्शन में कैसे एक्सेस किया जा रहा है? तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि डेटा, जिस डेटा को कॉपी करना है, जिस डेटा पर ऑपरेशन परफॉर्म करना है, वो डेटा डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन में दिया है। द डेटा on which the operation is to be performed, that data is directly mentioned in the instruction. It means that which is addressing mode? Immediate addressing mode. Okay. Then the second instruction is LXI RP, 16 bit. इसका मतलब है the meaning of instruction is load 16 bit number in a register pair. यहाँ पर जो X है, this is indicating the operation is being performed on the register pair using the register pair. तो और इंस्ट्रक्शन का जो मीनिंग है लोड 16 बिट नंबर इन अ रजिस्टर पेयर। फॉर एग्जांपल LXI B, 2050H। तो इसमें कौन सा नंबर और कौन सा नंबर लोड करना है, कौन सा रजिस्टर पेयर में लोड करना है?
तो द नंबर 2050 इज टू बी लोडेड इन द रजिस्टर पेयर। अब बी के साथ कौन सा रजिस्टर पेयर यूज होता है? बी के साथ सी रजिस्टर पेयर। तो क्योंकि बी सी डी और एच एल कौन कौन से रजिस्टर पेयर्स होते हैं? बी सी डी और एच एल। तो यहाँ पर एल एक्स आई बी कॉमा 20F0 दिया हुआ है, तो एक्स इज इंडिकेटिंग दैट द ऑपरेशन इज being performed using register pair. It means that the register pair will be BC and the 2050 number will be loaded into the register pair BC. तो जब ये इंस्ट्रक्शन परफॉर्म होगा, एग्जीक्यूट होगा, तो इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट होगा तो BC रजिस्टर पेयर में कौन सा नंबर लोड हो जाएगा? BC रजिस्टर पेयर में 2050. ओके, नाउ इसमें एड्रेसिंग मोड कौन सा है? Since the data which is to be loaded in the register pair BC, that data is directly mentioned in the instruction, so the addressing mode will be immediate addressing mode. And इस इंस्ट्रक्शन का जो लेंथ होगा वो कितना होगा? तो लेंथ ऑफ इंस्ट्रक्शन विल बी ऑफ 3 बाइट्स। 3 बाइट इसका लेंथ होगा, तो इसमें फर्स्ट बाइट तो ऑपकोड होगा, फर्स्ट बाइट इस इंस्ट्रक्शन का ऑपकोड होगा, सेकेंड एंड थर्ड बाइट विल बी दिस 16 बिट डेटा. Okay, third instruction is move rd comma rs. अच्छा, इसके प्रीवियस इंस्ट्रक्शन में ये जो सेकंड इंस्ट्रक्शन था इसमें जो rp लिखा हुआ है, the meaning of rp is register pair. Then थर्ड इंस्ट्रक्शन में यहाँ पर दो टर्म्स हैं rd और rs. rd का मतलब है सोर्स रजिस्टर, सॉरी rd का मतलब है डेस्टिनेशन रजिस्टर एंड rs का मतलब है सोर्स रजिस्टर. तो और मीनिंग ऑफ द इंस्ट्रक्शन इज मूव और कॉपी और ट्रांसफर द डेटा फ्रॉम सोर्स रजिस्टर टू डेस्टिनेशन रजिस्टर. कॉपी डेटा फ्रॉम rs into rd, सोर्स रजिस्टर टू डेस्टिनेशन रजिस्टर. फॉर एग्जाम्पल मूव b, a, और यहाँ पर rd और rs की जगह पर b, c, d, e, h, l या एक्यूमुलेटर में से कोई भी रजिस्टर हो सकते हैं. तो इसीलिए यहाँ पे एग्जाम्पल हमने कंसिडर किया है जिसमें मूव b, a है. दूसरे एग्जाम्पल में मूव b, c भी कंसिडर कर सकते हैं. तो वी कैन टेक एनी रजिस्टर इन द एग्जाम्पल. ओके, so move rd rs, this instruction is of 1 byte. and एड्रेसिंग मोड कौन सा यूज हो रहा है इसमें? तो एड्रेसिंग मोड इसमें यहाँ पर देख सकते हैं कि जो डेटा का जो डेटा पे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, कौन सा ऑपरेशन? डेटा ट्रांसफर ऑपरेशन, वो दो रजिस्टर्स के बीच में रहा है. सो द एड्रेसिंग मोड विल बी रजिस्टर एड्रेसिंग मोड. नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज LDA 16 bit. LDA 16 bit address. It means copy data byte into accumulator from memory specified by 16 bit address. यहाँ पर जो 16 bit लिखा हुआ है that is 16 bit address. Okay, so the meaning of instruction is load the accumulator with the data whose address is mentioned in the instruction, or copy data byte into accumulator memory from memory specified by 16 bit address. For example, suppose कि यहाँ पर प्रोसेसर में, दिस इज माइक्रो प्रोसेसर, प्रोसेसर में एक एक्यूमुलेटर रजिस्टर है, एक्यूमुलेटर. ओके, देन यहाँ पे हम मेमोरी को कंसिडर कर रहे हैं, दिस इज मेमोरी, और मेमोरी में कौन सी लोकेशन की बात हो रही है? 2050. लेट अस कंसिडर दैट दिस मेमोरी लोकेशन and the address is 2050H. This is the memory location. Let us consider that यहाँ पर जो डेटा है वो 80H है. So when this instruction LDA 2050H will be executed, then the data present at this location, that is 80H, will be loaded or transferred or copied into the accumulator, and it means that after execution of this instruction the accumulator will consist 80H. तो ये मतलब हुआ इस इंस्ट्रक्शन का कि कॉपी डेटा बाइट इनटू एक्यूमुलेटर फ्रॉम मेमोरी स्पेसिफाइड बाय 16 बिट एड्रेस. अब ये जो इंस्ट्रक्शन है इसका लेंथ कितने बाइट का है? दिस इज ऑफ 3 बाइट. इसमें 3 बाइट कैसे हुआ? फर्स्ट बाइट विल बी ऑप कोड और ऑपरेशन कोड
and the second and third byte will be the 16-bit address. Since the 16-bit address will take 2 bytes to be stored in the memory, so and the first byte is opcode, so the length of this instruction is 3 bytes. Okay. और अगर इसकी एड्रेसिंग मोड की बात करें तो एड्रेसिंग मोड कौन सा होगा? यहाँ पर क्या दिया हुआ है इंस्ट्रक्शन में, डेटा कैसे एक्सेस की जा रही है? डेटा को जो एक्सेस किया जा रहा है उस डेटा का यहाँ पर मेमोरी एड्रेस दिया हुआ है. It means that the data is not given directly in this instruction, but the address of the data is given in the instruction. It means that the addressing mode will be direct addressing mode. Then STA 16-bit. The next instruction is STA 16-bit address. Here it is also, यहाँ पर एड्रेस होगा STA 16-bit address. Okay, it means that this is the actually, ये इसका रिवर्स है. जहाँ जो काम हम इसमें परफॉर्म कर रहे हैं LDA 16-bit एड्रेस में, उसका जस्ट अपोजिट ऑपरेशन यहाँ परफॉर्म होगा. तो यहाँ पर STA 16-bit एड्रेस, दिस इंस्ट्रक्शन मीन्स दैट कॉपी डेटा बाइट फ्रॉम एक्यूमुलेटर इनटू मेमोरी specified by 16-bit address. Or we can also say that store the contents of accumulator to the address given in the instruction, or copy data byte from accumulator into memory specified by 16-bit address. We can say in both ways. Okay. Then example की अगर बात करें तो STA 2070H, यहाँ पर कोई भी हम एग्जाम्पल में 16-bit का एड्रेस कंसिडर कर सकते हैं. Here we considered STA 2070H. Then what will happen after execution of this instruction? It is considered that memory में एक और एड्रेस, एक और लोकेशन है 2070, और यहाँ पर मान लें कि कोई डेटा स्टोर किया गया है, फॉर एग्जांपल 70 डेटा को स्टोर यहाँ पर किया गया है. तो when this instruction STA 2070H will be executed, then this यहाँ पर accumulator में जो भी कंटेंट है, store the content of accumulator to the address given in the instruction. accumulator में क्या कंटेंट है? 80 है. तो अब इस इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूट होने के बाद क्या यहाँ पर कंटेंट हो जाएगा? यहाँ पर 80H हो जाएगा. तो मीनिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉपी डेटा बाइट फ्रॉम एक्यूमुलेटर इनटू मेमोरी स्पेसिफाइड बाय 16-bit एड्रेस. नाउ अब इसकी लेंथ की बात करें कि इस इंस्ट्रक्शन का लेंथ कितना है. तो द लेंथ ऑफ इंस्ट्रक्शन इज 3 bytes. First byte will be opcode and second and third byte will consist of the 16-bit address. और यहाँ पर कौन सा एड्रेसिंग मोड है? तो एड्रेसिंग मोड अगेन यहाँ पर डेटा डायरेक्टली नहीं दिया है, डेटा का एड्रेस दिया हुआ है. डेटा मतलब डेटा को जहाँ पर स्टोर करना है उसका एड्रेस दिया हुआ है. दिस विल बी डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड. The next instruction is out 8-bit. Out 8-bit. First of all, we have to understand the meaning of this instruction. The meaning of this instruction is send data byte from accumulator to the output device. Send data byte from accumulator to the output device means, एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं जिसमें accumulator में 90H है और यहाँ पर एक आउटपुट डिवाइस है जिसका पोर्ट एड्रेस 01H. तो ये एग्जांपल है ना, आउट 01H. इसी को हमने यहाँ पर कंसिडर किया है जैसे क्या प्रोसेस होगा. तो सेंड डेटा बाइट फ्रॉम एक्यूमुलेटर टू आउटपुट डिवाइस. और कौन से आउटपुट डिवाइस पर? whose address is mentioned in the whose port address is mentioned in the instruction.
यहाँ पर आउट 8 बिट का मतलब है पोर्ट एड्रेस। आउट 8 बिट का मतलब क्या है? पोर्ट एड्रेस। आउटपुट डिवाइस के पोर्ट एड्रेस की बात हो रही है यहाँ पर, मतलब जो भी डेटा यहाँ पर गिवन है वो पोर्ट एड्रेस है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आउट 8 बिट पोर्ट एड्रेस, ठीक है, पोर्ट एड्रेस इस एग्जांपल में क्या है? 01H। तो 01H हमने मान लिया एक आउटपुट पोर्ट है, इसका एड्रेस 01H है। सो जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा आउट 01H, तो यहाँ पर एक्यूमुलेटर में जो भी कंटेंट है, कौन क्या है कंटेंट? डेटा बाइट 90H। दैट कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर विल बी ट्रांसफर टू द आउटपुट पोर्ट whose एड्रेस इज 01H। तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के बाद आउटपुट पोर्ट पर कौन सी डेटा यहाँ पर लोड होगी? 90H। तो इस तरह से आउट 8 बिट पोर्ट एड्रेस ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है एंड दिस इज द मीनिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन। अगर इस इंस्ट्रक्शन की लेंथ की बात करें तो दिस इंस्ट्रक्शन इज ऑफ 2 बाइट्स। फर्स्ट बाइट में इसका ऑपकोड होगा और सेकेंड बाइट विल बी द 8 बिट पोर्ट एड्रेस। देन द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज इन 8 बिट, again the 8 bit indicating the port address here. In this instruction the 8 bit is indicating that this 8 bit is port address। इसका पोर्ट एड्रेस, जो भी इनपुट डिवाइस है उसका पोर्ट एड्रेस। तो फॉर एग्जांपल इन 07H, लेट अस कंसीडर अनदर एग्जांपल जिसमें एक एक्यूमुलेटर है प्रोसेसर के अंदर और इनपुट पोर्ट है जिसका पोर्ट एड्रेस 07H है। 07 है हेक्साडेसिमल, ये इनपुट पोर्ट है। ठीक है, अब द मीनिंग ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन इज एक्सेप्ट डेटा बाइट फ्रॉम इनपुट डिवाइस एंड प्लेस इट इन द एक्यूमुलेटर। आउट 8 बिट का जस्ट रिवर्स प्रोसेस होगा। यहाँ पर जो भी इनपुट पोर्ट है उस पोर्ट पे जो भी डेटा है उसको एक्यूमुलेटर में लोड करना है। इससे ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट, ये ऑपरेशन एग्जीक्यूट होगा कि द डेटा which is present at the output port the data which is present at the input port 07H will be loaded into the accumulator after execution of this instruction। तो यहाँ पर जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा इन 07H, तो मान लेते हैं कि यहाँ पर इनपुट डिवाइस जो है, इनपुट पोर्ट, उस पर जो डेटा है वो 70H है। ओके, then after execution of this instruction in 07H the data that is 70 will be loaded into the accumulator। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आउट 8 बिट एड्रेस और इन 8 बिट एड्रेस दोनों में जो रिवर्स ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, आउट 8 बिट पोर्ट एड्रेस में क्या हो रहा है? द डेटा बाइट इज सेंट फ्रॉम एक्यूमुलेटर टू द आउटपुट डिवाइस एंड इन 8 बिट पोर्ट एड्रेस इसमें डेटा इज एक्सेप्टेड फ्रॉम द इनपुट डिवाइस एंड प्लेस्ड इन द एक्यूमुलेटर। दोनों ये 2 बाइट्स के इंस्ट्रक्शंस हैं जिसमें फर्स्ट बाइट ऑपकोड होगा और सेकेंड बाइट विल बी द 8 बिट पोर्ट एड्रेस। ओके, इन दिस लेक्चर वी हैव discussed about different data transfer instructions of 8085. Then some instructions related to data transfer operations are remaining. For example, move R, M, move M, R, LDA X RP, STA X RP. The remaining instructions we will discuss in the next lecture, and also in the next lecture we will discuss about these remaining operations। अभी तो हमने सिर्फ डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस के बारे में डिस्कस किया। आगे के लेक्चर्स में हम एक एक करके अर्थमेटिक ऑपरेशंस, लॉजिकल ऑपरेशंस, ब्रांचिंग ऑपरेशंस और मशीन कंट्रोल ऑपरेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में we will see about the remaining instructions of data transfer operations। Okay, thank you।